Students, welcome back again to our online classes. So before starting this video, I want you to be open your detective minds with Maya and Nishad. So we were reading the chapter Expert Detective, where we have seen Maya and Nishad have opened up their detective minds. So we also open our detective mind and let's read in the giving following chapter. So we have seen that Maya and Nishad, okay, they both were brother and sister, and they are having age of Maya is of 10 years old and Nishad is having age of 7-year-old. Even we have seen Nishad का जो nickname है वो 7 है बिकॉज ऑफ द म्यूज़िकल नोट. जो उसका नेम है वो डिराइव कहाँ से हुआ था? फ्रॉम द म्यूज़िकल नोट. दे बोथ आर टॉकिंग अबाउट वन सीक्रेटिव मैन नेम्ड मिस्टर नाथ. तो वाई सीक्रेटिव? बिकॉज ऑफ हिज अपीयरेंस ही लुक थिन, ही हैव स्कार्स ऑन हिज फेस. स्कार्स मीन्स निशान थे उसके फेस पे बहुत सारे, तो वो क्या सीक्रेटिव एंड अनप्लेजेंट लगता था. सो माया क्या है? माया वॉज एल्डर. सो एंड बीइंग एल्डर शी वॉज थिंकिंग कि ही मस्ट बी अ क्रुक. मिस्टर नाथ मस्ट बी अ क्रुक. क्रुक मीन्स क्रिमिनल, बट वी यूज वर्ड क्रुक इन इनफॉर्मल वे. फॉर्मल वे में अपन क्रिमिनली कहते हैं, थीफ कहते हैं, बट इनफॉर्मल में उसको क्रुक कहते हैं. सो माया इज थिंकिंग ही इज़ अ क्रुक एंड माया एंड निशाद बोथ आर फाइंडिंग आउट द मिस्ट्री अबाउट मिस्टर नाथ कि वाई ही इज़ लुकिंग सो लाइक दैट एंड उसको ये क्रुक क्यों बुला रहे थे. सो वन डे वी हैव सीन दैट माया and Nishad were talking about Mr. Nath, and most probably Maya was so sure that Mr. Nath is a crook, but Nishad was somewhere doubtful. Nishad को इतना clearly नहीं doubt था कि हाँ ये crook ही होगा. He is thinking in another way. We'll be seeing what he is thinking in another way. In the previous video we have seen that Nishad is about to meet Mr. Nath. So let's see what Mr. Nath and Nishad had a conversation. So from page number 87, third paragraph. Seven had been quite upset about Mr. Nath's grunt appearance and was sure that he was starving. He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." The man had opened it and asked him, "Lost another marble?" So here we have seen when Nishad was coming from Mama's birthday, he went to Mr. Nath's house and knocked the door quickly. Means अपन क्या करते हैं, जस्ट नॉक करते हैं ईजिली, बट उसने क्विकली करा बिकॉज दे वर बिट स्केयर्ड ऑफ मिस्टर नाथ्स अपीयरेंस. सो एज सून एज ही केम आउट ही सेड, he means the man said, or you can say he said. The man here refers to Mr. Nath said to Nishad, "Lost another marble?" means क्या तुम अपना मार्बल वापस यहाँ पे आ गया या भूल गए हो. मार्बल इज in Hindi you can say कंचे. अपन गेम्स खेलते. अर्लियर वी हैव सीन व्हेन वी हैव स्टार्टेड द वीडियो दैट चिल्ड्रन वर प्लेइंग एंड गलती से वो मार्बल मिस्टर नाथ के वहाँ पे चला गया था. इसीलिए मिस्टर नाथ वापस से निशाद से क्वेश्चन कर रहे हैं गेट खोलते सार दैट क्या तुम्हारा वापस मार्बल यहाँ पे आ गया है और यू हैव लॉस्ट योर मार्बल. एंड व्हेन ही सॉ मिस्टर नाथ, निशाद, when Nishad saw Mr. Nath, he was very you can say kind and feeling sorry about Mr. Nath's appearance because his appearance was grunt. Grunt means here sickly appearance, कि जो उसको अपीयर हुआ निशाद को वो बता रहा है कि वो काफ़ी अपसेट है उस अपीयरेंस से एंड
वो सोच रहा है कि डेफिनेटली जो मिस्टर नाथ है वो स्टार्व कर रहे हैं, ही इज़ starving मीन्स ही इज़ हैविंग नॉट फूड एंड he is feeling hungry but not having food at home. Next paragraph, he had obviously recognized my brother. No, said Nishad, he had taken man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. So now here we see that Maya is thinking कि डेफिनेटली मेरे ब्रदर को उसने रिकग्नाइज़ कर लिया मिस्टर नाथ ने, क्योंकि सेम क्वेश्चन पूछा ना कि मार्बल के बारे में, तो मिस्टर नाथ को रिकग्नाइज़ हो गया ये वही लड़का है जो कि पहले भी मार्बल लेने आया. एंड व्हेन मैन आस्क्ड मीन्स मिस्टर नाथ आस्क्ड निषाद दैट यू लॉस्ट एनी मार्बल, सो निषाद रिप्लाइज फ्रॉम हियर. नो, सेड निषाद. तो निषाद ने क्या रिप्लाई करा मिस्टर नाथ को? नो नो, I have not lost any marble. He quickly, he means here, he means Nishad. Nishad took man's hand in his own and thrust. Thrust means quickly with the force. तो जैसे कि वो पर्सन आया बाहर मिस्टर नाथ, तो उसने क्या करा निषाद ने, उस मिस्टर नाथ का हैंड लिया और उसके ऊपर चॉकलेट क्विकली एंड विथ फोर्स रख दी. जैसे अपन कुछ उठा के एकदम से रखते हैं, अपने आप हाथ लिया मिस्टर नाथ का और एक चॉकलेट की बार वहाँ उसके हाथ में दे दी. वाई डू यू थिंक कि उसने चॉकलेट की बार मिस्टर नाथ को दी होगी? बिकॉज निशांत वॉज वेरी अपसेट और फीलिंग अपसेट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ मिस्टर नाथ, एंड वो उस चीज़ से स्टार्विंग अपनी ख़त्म कर सके चॉकलेट से, इसलिए वो चॉकलेट निषाद ने मिस्टर नाथ को दी. नेक्स्ट पैराग्राफ, डिड यू गेट अ चांस टू पीक इन टू द ट्रंक 7? आई आस्क्ड. सो माया इज आस्किंग डिड यू गेट अ चांस, क्या तुमको मौका मिला था कि तुम उसके ट्रंक पे पीक कर सको? पीक मीन्स लुकिंग क्विकली एंड सीक्रेटिवली, मीन्स इफ देर इज़ अ बॉक्स और मैं अगर उस बॉक्स को खोलना चाहूँ और मैं ये ना चाहूँ कि कोई मुझे देख ले या किसी को पता चल जाए, तो उसको कहते हैं पीक, क्विकली एंड सीक्रेटिवली. नेक्स्ट पैराग्राफ, Nishad looked disappointed. He didn't even ask me in, he said. Then he smiled, but I find out something, Maya. I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. So now Nishad is saying that जैसे माया ने क्वेश्चन पूछा कि तुम उस अंदर जाके ट्रंक को देख पाए. वाई शी इज़ आस्किंग फॉर लुकिंग इन टू द ट्रंक? बिकॉज अर्लियर माया वॉज थिंकिंग दैट दिस क्रिमिनल, दिस मिस्टर नाथ बीइंग अ क्रोक हैड स्टोलन मनी, पुट इट इन हिज ट्रंक. माया को ये लगता था कि उसके ट्रंक के अंदर बहुत सारा स्टोलन मनी है. बट निषाद ने कहा कि नो, उसने तो मुझे अंदर भी नहीं बुलाया. ही डिडंट इवन आस्क मी इन. देन ही स्माइल्ड. ही अगेन हेयर रेफरिंग टू मिस्टर नाथ एंड सॉरी हेयर ही रेफर्स टू निषाद. निषाद इज सेइंग कि नो नो माया, आई डिडंट फाउंड आउट एनीथिंग बट आई फाउंड आउट समथिंग एल्स. What he found out? He is telling to Maya that he went down to the restaurant where Ramesh worked. Down to means might be जहाँ पे मिस्टर नाथ रह रहे हैं तो वो किसी फ्लोर्स पे रह रहे हैं और उसके नीचे एक रेस्टोरेंट है जहाँ रमेश काम करता है. निषाद ने कहा कि मैं मिस्टर नाथ से बात नहीं कर पाया, बट मैं डेफिनेटली रमेश जो रेस्टोरेंट में काम करता है मैं उससे बात करके आया हूँ. नेक्स्ट पैराग्राफ फ्रॉम हेयर, good for you, Mr. Detective, I said, panting on his back. I hope you questioned him properly. 7 looked pleased. Ramesh told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening and 2 cups of tea in the morning and 1 in the afternoon. So now when Nishad said कि मैं रमेश से बात करके आया, तो माया क्या करती है,
उसके बैक पे पैट करती है कि वेरी गुड मिस्टर डिटेक्टिव। मिस्टर डिटेक्टिव किसको कह रही? निशाद को। एंड वाई शी इज़ कॉलिंग निशाद डिटेक्टिव? बिकॉज वो सब क्या क्वेश्चन पुट अप करें। एंड माया इज़ वेरी ईगर। ईगर मीन्स उसको बहुत ज़्यादा जल्दी जानना है कि मिस्टर नाथ के बारे में कि वाई मिस्टर नाथ इतने सीक्रेटिव है। तो वो अप्रिशिएट करती निशाद को कि वो वहाँ पे गया रमेश के पास और उसके ऊपर क्वेश्चन पुट अप करे। एंड 7 ऑल्सो, 7 हेयर मीन्स निशाद ऑल्सो लुक प्लीज्ड। प्लीज मीन्स ही वॉज वेरी हैप्पी कि उसको भी मिस्टर नाथ के बारे में भले थोड़ा सा बट पता चला दैट जो रमेश है उसके लिए मिस्टर नाथ के लिए 2 मील्स लेके जाते हैं, मीन्स 2 टाइम का खाना लेके जाते हैं, 1 इन मॉर्निंग एंड 1 इन आफ्टरनून। लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन, Ramesh says he is not very particular about what he eats. It's always the same food, 2 chapatis, some dal and a vegetable. Mr. Nath pays cash and tip as well. So now Nishad is saying, or you can say telling to Maya that Ramesh brings always same food to Mr. Nath. Mr. Nath is not very particular, means पर्टिकुलर है मीन्स चूजी। यू कैन से कि आज मुझे ये खाना है, वो कल मुझे वो खाना है। वो पर्टिकुलर थे अपने खाने के ऊपर कि हर बार 2 चपातीज एंड सम वेजिटेबल एंड दाल। एंड इन रिटर्न मिस्टर नाथ पेज कैश। अर्लियर दे वर थिंकिंग कि ये तो क्रिमिनल है और ही मस्ट बी स्टार्विंग कि उसके पास पैसा नहीं होगा। बट हेयर वी सी कि मिस्टर नाथ हैव सम मनी that he pays cash and tips well. Tips well means give a generous tip, money in the thanks for the service. तो रमेश को वो कह रहे हैं कि वो बिल तो पे करते करते थे, साथ में एक generous tip भी देते थे रमेश को। नेक्स्ट पैराग्राफ, रमेश told me something very strange, Maya. 7 added, almost every Sunday he carries 2 lunches to Mr. Nath's room and same man with him each time. He is tall, fair, stout and wears spectacles. Ramesh says his visitor talks a lot, unlike Mr. Nath who hardly speaks. Now again 7 continues to tell Maya that Ramesh have also told that he bought 2 lunch boxes on Sunday. And why 2 lunches? Because there is one man who who meets Mr. Nath on Sunday. And in the last 3 lines we saw the appearance. Nishad or you can say Ramesh told the appearance of that visitor that कि वो tall था, fair था, stout means fat and short heighted. जो person fat होते हैं और short heighted होते हैं तो उसे stout कहते हैं। Stout means short heighted and fat, and that man wears spectacle. And the visitor talks lots of things to Mr. Nath, but Mr. Nath not speak or hardly speaks. Next paragraph, well done Nishad, I told him. Now that we have made some progress with our inquiries, we have to sort out all the facts like expert detective so that we can trap the crook. सो अब क्या है, अगेन माया इज़ गेटिंग वेरी हैविंग अ डिटेक्टिव फीलिंग कि अब अपन के पास कुछ और पॉइंट्स हैं, तो लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट मिस्टर नाथ जस्ट लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रूक. सो सॉर्ट आउट मीन्स अरेंज सिस्टमेटिकली, मीन्स दैट कि जितने भी उनको जो आंसर्स मिले थे रमेश के थ्रू या निशाद के थ्रू, तो उनको एक सिस्टमेटिकली अरेंज करते ताकि वो जो मिस्ट्री है मिस्टर नाथ की वो सॉल्व कर सकें. एंड माया इज़ थिंकिंग कि वो क्या है, क्रूक. तो अपन जब उसके माया इज़ टेलिंग टू निशाद कि जब अपन सारी चीज़ें अरेंज कर लेंगे तो शायद अपन ट्रैप कर सकते हैं. ट्रैप मीन्स पकड़ सकते हैं उस क्रिमिनल को. नेक्स्ट पैराग्राफ, हाउ डू यू गो ऑन माया? 7 sighed. How can you possibly imagine he is a crook? He looks so ordinary.
सो नाउ 7 क्या है, 7 थोड़ा सा डाउटफुल था स्टार्टिंग से, और जब उसने अपीयरेंस देखा तब उसको यही लग रहा है कि नो माया, ही इज़ नॉट अ क्रोक, ही इज़ वेरी ऑर्डनरी पर्सन। हाउ डू यू गो ऑन मीन्स तुम ऐसे कैसे कह सकती हो माया। साइड मीन्स एक होता है कि पहले क्या अपन पढ़ रहे थे, इंटरप्टेड मीन्स अगर कोई कुछ बोल रहा था तो 7 उसको माया को इंटरप्ट कर रहा था, बट 7 इज़ नॉट हैप्पी कि वाई माया इज़ थिंकिंग कि ही इज़ अ क्रोक, वाई शी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग कि एक ऑर्डनरी मैन हो सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, criminals can look quite ordinary, smarty, I resorted. Did you see the picture of Hyderabadi housekeeper in the papers yesterday? He looked like a man on the street. Nishad looked doubtful. So now Maya is telling that to निशाद कि क्रिमिनल्स जो हैं वो बहुत ऑर्डनरी लगते हैं, एंड शी इज़ गिविंग एग्जाम्पल कि जो न्यूज़पेपर में आया था एक हैदराबादी हाउस ब्रेकर मीन्स जिसने घर को तोड़ के जो चीज़ें, जो थीफ होते हैं जो घर के ताले तोड़ देते हैं उनको हाउस ब्रेकर्स कहते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि उस थीफ के बारे में तुमने उसका अपीयरेंस देखा, वो भी एकदम ऐसा पर्सन लग रहा था कि जैसे एक स्ट्रीट पे रहता हो। व्हेन माया वॉज एक्सप्लेनिंग, निशाद लुक डाउटफुल मीन्स ही इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि दैट मिस्टर नाथ इज़ अ क्रोक। Next paragraph, the monsoon broke the next day, dark clouds accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst, with all their fury flooding the street with the heavy downpour. School was have to be reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flood road, and there was an unexpected holiday. So now Maya is telling to the readers that one day monsoon broke. Monsoon broke means monsoon came, or you can say monsoon started, and it was so heavy rain that all the streets were flooded, and even here it is written dark clouds accompanied by light blinding flashes means डार्क क्लाउड्स तो थे जब रेन स्टार्ट हुई है, बट ब्लाइंडिंग मीन्स जो लाइटनिंग है, लाइटनिंग मीन्स यू कैन से इन हिंदी बिजली, बिजली जो थी उसकी काफ़ी ब्राइट थी, इट वाज लाइक कि वो ब्लाइंड कर सकती है इतनी तेज, मीन्स इट वाज नॉट एक्चुअली सो ब्राइट, बट माया इज डिस्क्राइबिंग इट वेरी डिस्क्रिप्टिवली दैट ऑल द डार्क क्लाउड्स वर देयर, there were blinding flashes of lightning and rolling thunderburst of their fury. Fury means कि फ्यूरी इज़ लाइक कि जब नेचर अगर बहुत ज़ोर से बारिश करती है, या इफ़ वी सी फ्लड्स, इफ़ वी सी अर्थक्वेक, तो वी से फ्यूरी। एंड डाउनपोर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाउनपोर? हैवी रेनफॉल। So she is completely explaining that it was very heavy rainfall, all the streets were flooded, and due to this we were not able to go to school. Schools were about to reopen about after summer holidays. So अपन को इस पैराग्राफ से क्या पता चलता है कि उनकी जस्ट माया और निशाद की समर वेकेशंस जस्ट ख़त्म हुई हैं, एंड दे वर अबाउट टू गो स्कूल, बट ड्यू टू हैवी रेनफॉल जो स्कूल है उन्होंने क्या स्कूल रीओपन नहीं करा, एंड दे हैव अ अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। अनएक्सपेक्टेड मीन्स इफ़ समवन इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग तो उसको कहेंगे अनएक्सपेक्टेड, मीन्स उनको लगा नहीं था कि छुट्टी हो जाएगी उनकी स्कूल की, बट ड्यू टू हैवी रेनफॉल दे गॉट अ हॉलीडे। लास्ट पैराग्राफ, I thought I spent time usefully. I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. So now Maya क्या है? Maya decided to make this holiday useful. So she took a piece of a paper and sit on a table and chair. Second part of your chapter, I wrote in block letters. I means Maya. Maya wrote in block letters. What she wrote? Catching a crook, expert detectives, Nishad and Maya Pandit by appointed to the whole world. By appointment to means officially chosen.
सो शी इज़ कम्प्लीटली इन फुल मूड ऑफ बीइंग डिटेक्टिव। माया को क्या था, माया बहुत ज़्यादा मूड में आ चुकी थी कि लेट्स, उनको पता है डिटेक्टिव वाली फीलिंग आ रही थी कि लेट्स फाइंड आउट अबाउट मिस्टर नाथ। तो उसने अपनी हेडिंग क्या लिखी पेपर के ऊपर कि कैचिंग अ क्रुक मीन्स कैचिंग मिस्टर नाथ एंड बाय whom, बाय द एक्सपर्ट डिटेक्टिव। तो वो निषाद और अपने आप को क्या कह रही थी कि हाँ एक्सपर्ट डिटेक्टिव, शी इज़ थिंकिंग दैट शी इज़ एक्सपर्ट। एंड बाय अपॉइंटमेंट मीन्स कि वर्ल्ड ने इनको चूज़ करा है टू फाइंड आउट द मिस्ट्री ऑफ मिस्टर नाथ। फर्स्ट पैराग्राफ, then I began writing. About half an hour later I turned towards Seven, who was lying on his tummy, chin cupped in his palm, reading comics. Want to hear what I have written? I asked. So now here in the picture, both Maya and Nishad were sitting in the room. Maya was writing about the mystery of you can say mystery of crook or mystery of Mr. Nath, and after writing, or you can say half an hour later, Maya asked to Nishad, do you want to hear what I have written? And where like Nishad was only you can say lying just as in the photo, cupped, chin cupped in his palm means this, पाम्स आपके ये कि निषाद जो था वो ऐसे लाई कर रहा था बेड पे। कप्ड मीन्स इस अपने हाथ को, जैसे अपन कप की शेप क्या होती है ये, तो उसने शेप ऐसे रखी हुई है चिन के अंडर। एंड निषाद इज़ जस्ट लाइंग एंड माया इज़ आस्किंग द क्वेश्चन कि तुम निषाद सुनना चाहोगे व्हाट आई हैव रिटन अबाउट इट। सो here we end this video and we will see that what Maya, और मेरे को यूँ कहना चाहिए कि एक्सपर्ट डिटेक्टिव माया ने क्या लिखा है अबाउट दैट क्रोक। वी विल बी फाइंडिंग आउट दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो टू फाइंड आउट what expert Maya have written in his that piece of paper. Thank you so much again.